Okay, now I'll share my screen. See the screen? The PPT is visible. Please confirm. Deepak, Lovely and Tushar. Please confirm my screen is visible to each and everyone. Okay. तो दो पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं pandas के. Move on the third section. And लास्ट सेशन में मैंने आपको सिनेरियो बताया था कि कोई भी डेटा सेट आप लोड कराओगे तो कुछ फंक्शनैलिटी पे आपको काम करना है. वो हर एक डेटा पे आपको वर्क करना है. लाइक first you check the size of the data set, then you can display the information about the data set, and you can use the describe function for the stats analysis about your data set but in a numerical column, and check the null values. If the null value is present in our data set, then you can change and fill with mean median mode. Alright, and display the duplicacy and remove the duplicacy. Alright, okay. Let's move on. I'll open my ID. I'll put the library here. First is import numpy as empty. Second one is import pandas as pd. आज का जो सेशन हमारा होगा कि हाउ टू रिमूव एंड हाउ टू ऐड and how to extract the column with the help of log and ilog functionality and some other functions also. So let's create the data first like this. So here we go. You can see this. There is three data frames here. The first one is the raw data can be selected using raw label index shown in row. The quarterly sales data. So where first we can create the quarterly sales data. So this is a variable and these are the columns name Q1, Q2, Q3, and there is three entry, entry 1, entry 2, entry 3 like that. Okay, let's create the data first. So I'll use the QS variable like a quarterly cell and create the dictionary for the Q1 first. And here we go, the values is for Q1 के लिए जो वैल्यू है हमारे पास वो 120, 200 and 175. Let's check 120, 200 and 175. Let's create Q2 variable and take the values for the Q2 is 80, 180, 175. And the Q3 is 100, 120, 130. So this is a dictionary. Now create an index. IDX is equal to entry 1, comma, entry 2, comma, entry 3. I'll create the list also for assigning the index. Okay. तो लेट्स अभी हमने क्या करा है, हमने डिक्शनरी क्रिएट की है फॉर द डेटा फ्रेम एंड दूसरा हमने एक लिस्ट क्रिएट की है फॉर इंडेक्सेस. So now we can convert it to data frame. I'll take the QRT cell is equal to pd dot data frame
and pass the variable keywords and use the index parameter and pass the variable id. Index length is doesn't matter. जैसे का पॉइंट में एक मिस्टेक हो गई है, पॉइंट लग गया कॉमा की जगह। This, आगे जो छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, कॉमा की जगह डॉट लग गया। प्रिंट qrt अंडरस्कोर सेल्स जैसे आ रहा है clear. But I'll share the screenshot and you guys create your dataset also on the same values. Then चलो मैं अभी क्वार्टरली सेल्स लॉग फंक्शन को समझते हैं। पहले लॉग फंक्शन क्या करता है और आई लॉग क्या करता है। लॉग एंड आई लॉग बेसिकली जो लॉग है वो चलता है फॉर द रोज ओनली, आई लॉग चलता है फॉर रोज एंड कॉलम्स बोथ। ठीक है, यू कैन सी दिस दिस इज अ वेरिएबल क्वार्टरली सेल्स डॉट लॉग और एंट्री वन एक्सट्रैक्ट किया है आपने। तो ये क्या करेगा, सिर्फ एंट्री वन का डेटा दे देगा। I guess qrt underscore style dot log, and I'll suppose I'll take the entry one. So basically you can extract the cell file, the variable first one. So you can extract the rows, alright, the rows values using log function. Like qrt underscore cell extract dot log, and you can put the here. As you can see the entry three rows values extracting from the data. Clear? So you can extract the rows value, rows entries using log function. Each and everyone clear? And what is the ilog? ilog में क्या करते हैं कि रोज एंड कॉलम, मतलब एक तरह से आप ये मान लो कि जो लॉग है वो आपको सीरीज जनरेट करके देगा एंड जो ilog है वो आपको डेटा फ्रेम जनरेट करके देगा फ्रॉम द डेटा फ्रेम। जो भी डेटा सेट है उससे डेटा फ्रेम आप निकालते हैं। इस पे स्लाइसिंग का मेथड यूज करते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। ऑलराइट, so let's create the example. qrt underscore cell dot ilog, and I'm using one column three, which means start the one index number and stop in index number. So there is 0 or 1. तो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर एंट्री टू से स्टार्ट होगा, एंट्री थ्री पे फिनिश होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एंट्री टू और एंट्री थ्री की वैल्यूज आपको चेक करके देगा। Now you can see this entry 2 or entry 3. So this is the ilog. Hopefully guys ये आपको समझ में आ गया होगा what is a log and what is a ilog. इनके यूजेस आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो लॉग फंक्शन है वो बेसिकली रोज एंट्री को एक्सट्रैक्ट करता है और जो आई लॉग है वो रोज एंड कॉलम एंट्री को एक्सट्रैक्ट करता है। अब जो रोज ओनली एंट्री को एक्सट्रैक्ट करेगा विच मीन ये सीरीज क्रिएट करके देगा, और जो आई लॉग है वो आपको एक डेटा फ्रेम ही क्रिएट करेगा। क्लियर? ये हमारे पास फंक्शनलिटी थी लॉग एंड आई। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट। इफ यू ऐड अ न्यू कॉलम, आपने क्या करा है कि आप सेलेक्टिंग रोज, आपने रोज को सेलेक्ट कर लिया फ्रॉम द डेटा सेट से, या फिर आपने प्रॉपरली एक डेटा सेट से आपने डेटा फ्रेम को सेलेक्ट कर लिया। अगर आपके पास एक न्यू कॉलम, आपके पास एग्जिस्टिंग डेटा सेट है और उसमें एक न्यू कॉलम ऐड करना है, तो हाउ टू ऐड अ न्यू कॉलम? सो लेट्स द पीपीटी इज हियर, एंड
So pandas allow to add a remove column in existing data frame, which can be held for a purpose such as a summarizing data, making data easy to read, reducing processing time, and so on. सो बेसिकली हमने जो क्वार्टरली सेल्स बनेंगे उस क्वार्टरली सेल्स के लिए अपन क्या करेंगे, सारे क्वार्टरली सेल्स को एक एनुअल सेल्स में एक कॉलम में हम अटैच करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स क्रिएट द फर्स्ट कॉलम. एक हम कॉलम बनाएंगे और वहाँ पर प्रॉपरली कैलकुलेशन करेंगे और उसको हम एक कॉलम में इंसर्ट करेंगे. ठीक है. गिव इट टू कपल ऑफ मिनट, आई विल कनेक्ट द चार्जर. So let's create the next column, like quarterly cells. जो हमारे पास डेटा सेट है उसमें एक नया कॉलम इंसर्ट किया और उसमें हमने सारे वैल्यूज को ऐड किया. ठीक है. देन we can display the quarterly cells. Now you can see this at our minimal cells with all the entries. Let's create this. So our column is qrt underscore cells. Sorry, variable is qrt underscore cells, and now you can create a new column like a annual cell, and let's create with all the entries. So qrt underscore cells. The first entry is q1 plus qrt underscore cells. The second column q3 plus. आप दो कॉलम की भी ऐड कर सकते हैं, मर्जी आपकी है, क्योंकि हम एक नया कॉलम ऐड कर रहे हैं. तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, Q1 Q2 Q3 की ओवरऑल द रोज एंट्री आपके एक न्यू कॉलम में असाइन होगी. ठीक है. इसी तरह से आप सारे वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं. सो Q3 is here. If I print this QRT underscore cells now, so now you can see this, the new column adds on your existing data. So we can add these values for Q1, Q2 and Q3 because there is 320, and the Q1, Q2, Q3 for the entry 2 there is 440, and for the Q3 entry 3 is 175, 175 and 130 is at 430. So this is a method to add a new column on existing data. Hopefully guys ये आपको क्लियर हो गया होगा. क्लियर हो गया? यस और नो? प्लीज अप्लाई करके देखिए. Yes, sir. जस्ट मूव ऑन. कि अगर हमने कॉलम ऐड कर दिया तो ऐड करने के बाद हमें रिमूविंग भी सीखना. सो लेट्स रिमूव. तो एक एक्सेस पैरामीटर होता है. ठीक है. एक्सेस पैरामीटर हम यूज करते हैं कि आपको रिमूव करना है कॉलम्स को. तो एक्सेस पैरामीटर में आप अगर जीरो मेंशन करते हो तो जीरो कंसीडर करता है रो के लिए और वन कंसीडर करता है फॉर कॉलम, या फिर आप कॉलम या रो भी मेंशन कर सकते हैं लाइक दैट. यहाँ पर एक्सेस पैरामीटर में कॉलम्स मेंशन है, तो यू रिमूव द कॉलम, यू कैन मेंशन द रोज ऑल्सो, और इस कॉलम के लिए अगर आप वन भी दे देते तो भी आपको क्या करता है, कॉलम को रिमूव कर देता. बट what is the function used to drop the column? You can use the drop function. ड्रॉप फंक्शन हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे फॉर कॉलम रिमूविंग के लिए.
अब ड्रॉप फंक्शन सिर्फ कॉलम रिमूव के लिए नहीं होगा, आपको रोज भी रिमूव करनी है तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बट आपको रोज का नहीं करना। लेट्स सी हाउ टू रिमूव रो एंड हाउ टू रिमूव अ कॉलम। ठीक है, मैंने रो और रिमूव कॉलम की बात। मैं मेंशन कर देता हूँ और रिमूव कॉलम एंड रो यूजिंग ड्रॉप। So the variable is qrt underscore cell dot drop, and which column you can drop it. So you can mention the column name is here जो अभी हमने बनाया। I'll remove Q3 from here. I'll पहले मैं इसको कर देता हूँ फिर Q3 को भी रिमूव कर देता हूँ। So annual cell, this is your column name, and after the column name you can use the axis parameter axis, और axis के अंदर आप 1 पास करें। Now you can see this कि आपका ये column रिमूव। ठीक है, आई कैन सी दिस कि आपका कॉलम रिमूव कर लिया। अगर आप कॉलम्स भी एंटर करते तो भी आपकी वैल्यू क्या करती, कॉलम की रिमूव कर। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव ऑन रिमूव रोज हियर। हाउ टू। सर एक्सेस यहाँ क्यों डाला गया है ये? एक्सेस एक पैरामीटर है जो यूज कर रहा है ड्रॉप फंक्शन के साथ चलता है। एक्सेस पैरामीटर की वैल्यू अगर 1 दोगे तो कॉलम को रिमूव करेगा फ्रॉम द डेटा सेट, और एक्सेस पैरामीटर की वैल्यू 0 दोगे तो रोज को रिमूव करेगा फ्रॉम द डेटा सेट। ड्रॉप के साथ देखो जितनी भी फंक्शन है, हर एक फंक्शन के अंदर अलग अलग पैरामीटर असाइन होते हैं। ठीक है, तो इसका ड्रॉप का एक पैरामीटर है एक्सेस, कि आप किस एक्सेस पे रिमूव करना चाहते हो, कॉलम एक्सेस चाहते हो या फिर रो एक्सेस। इफ आई यूज द सेम वैल्यूज हियर, लाइक तो मैं यहाँ पर बस क्या करूँगा, यहाँ पर रोज की वैल्यू दे दूँगा। मैं रिमूव करना चाहता हूँ एंट्री ट्रू फ्रॉम हियर, एंट्री ट्रू, तो मैंने रोज का नेम दे दिया, और यहाँ पर आप 1 की जगह 0 मेंशन करो। ठीक है, नाउ कैन सी दिस कि आपकी रो रिमूव। अब अगर मैं इस पे एक काम करता ये कि मैं इसकी जगह जैसे 1 देता, ठीक है, 1 देता तो ये मुझे एरर देता। ठीक है, कि एंट्री टू नॉट फाउंड फ्रॉम दिस एरर, ये एरर दे रहा है। तो बेसिकली क्या है, फॉर रिमूविंग द रोज यू कैन यूज द एक्सेस पैरामीटर वैल्यू इज 0, एंड इफ यू वांट टू रिमूव द कॉलम यू कैन यूज द एक्सेस पैरामीटर इज 1। क्लियर दीपक? यस सर। बाकी लोगों का भी क्लियर हो रहा है ना? चलो, सो हमने ऐड कर लिया, रिमूव कर लिया, रोज रिमूव। अब रोज आप इस तरह से भी रिमूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। ठीक है, इस तरह से भी रिमूव कर सकते। नाउ अब अगर मेरे पास रो एंड कॉलम रिमूव तो कर पा रहे हैं, अगर मुझे कुछ सेल्फ वैल्यू, मतलब कुछ वैल्यूज अपडेट करनी है और एग्जिस्टिंग डेटा सेट, तो हाउ टू अपडेट दैट, कि मतलब विच मीन द फाइनल डेटा सेट। मैं फिर से एक बार इसको क्रिएट कर देता हूँ। ये हमारा डेटा सेट था qrt dot cell। ठीक है, this is your data set, and we want to change some values from the data। अगर मुझे इस डेटा सेट में से कुछ वैल्यू को चेंज करना है, so how to update the value? So next scenario is, next approach is update the cell। ठीक है, अब सेल के अंदर वैल्यू भी तो होंगी हमारी। ठीक है, तो उनको वैल्यूज को हमें क्या करना है, अपडेट करना। हाउ टू चेंज द वैल्यू on existing data? Let's look at the chart. So updating values from a data frame provides flexibility. It is helpful to replace erroneous values or update database on a new data receipt. Which means अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर नल वैल्यूज है तो आप क्या करोगे, नल वैल्यूज है तो आप सिंगल नल वैल्यूज है तो जीरो से आप कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, अगर आपके पास मल्टीपल नल नल वैल्यूज इन न्यूमेरिकल कॉलम है तो आप मीन मीडियन मोड से, मतलब कि स्टैट की सेंटर टेंडेंसी अप्रोच को लगा करके आप उसको फिल कर दोगे।
And the another way for the category variable, if you have see the one category value in a category column, so you can then you can remove with the unknown values. And if you found the multiple values from the category, then you can use the stats approach like a mode. Okay, guys, give me a 2 minutes. Okay, you can apply the code that I provided on a screen. Um, okay. कुछ कर ही रहे हैं दिख तो रहा ही नहीं नहीं बताओ मुझे जल्दी फ्रंट एंड तो तुम मुझे देखना ना प्रोजेक्ट कैसे लाइव लैपटॉप ठीक है तो आपके क्लास टाइम की प्रॉपर्ली मैं प्रोजेक्ट देखूंगा ठीक है और जो तुमने जो सैलरी बताई उसको कौन से काम करें क्लास टाइम ना बहुत तेरी बोली अच्छा तुम ड्रोन नहीं लंच टाइम अभी तो टाइम 12:30 12 बजे 12:30 हाँ 12:50 हाँ 12:50 हाँ सर दोनों प्रोजेक्ट में एक दो बंदे और हैं के अंदर उनको पर सेकंड प्रोजेक्ट में हाँ इसलिए नहीं बनता है यार लग जाएंगे सारे लोग बट यू आर बीसी इसके बाद में बदला उसको देखिए तो उसमें सर नहीं मैं करेक्ट कोई कोई रहना है बच्चे सेकंड ईयर वाले लेने के तो दो बंदे और मतलब आपके दो लड़के और प्रोजेक्ट मेरी नज़र में तुम बात कर लो मुझे बताओ मेरे को बताओ ये मैं मुझे मिली तुम्हारे तो दो लोग का किसने बोला चार चाहिए मैं बोल रहा कोई नहीं कौन सर बोल रहे नहीं नहीं कोई ऐसा कुछ नहीं चार दो कर सकते हैं हाँ मिनिमम टू मैक्सिमम फोर है हाँ okay so let's create the sorry update the value so you can use the set values function ठीक है अब पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि वैल्यूज काम क्या करता है कि सिंपल अगर आप वैल्यूज पास कराओगे जो कि हमने देखा था उस पे तो इफ आई यूज द क्वार्टर सेल्स डॉट वैल्यू तो जितनी भी वैल्यूज हैं उनके आपको एरे फॉर्मेट में वैल्यूज को निकाल के दे देगा फ्रॉम योर डेटा दिस है वैल्यू इफ यू यूज द QRT अंडरस्कोर सेल्स एंड आई यूज अ Q1 कॉलम मुझे Q1 कॉलम में Q1 कॉलम की सिर्फ वैल्यूज चाहिए ठीक है तो आप क्या करोगे वैल्यूज करोगे Q1 कॉलम की वैल्यूज का एक आपको एरे क्रिएट कर देगा बट इफ यू चेक द काउंट कि आपको काउंट चाहिए तो यू कैन यूज द काउंट यू कैन यूज द वैल्यू अंडरस्कोर काउंट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट इससे क्या करेगा टोटल काउंट आपको दे देगा नाउ यू कैन सी दिस एंट्री 2 इज 200 एंड एंट्री 3 इज 175 एंड द एंट्री 1 इज 1 ठीक है कि आपकी ये वैल्यूज हैं एंट्री की तो आपको वैल्यू काउंट से निकाल के दिखेगा प्रॉपरली ईच है फॉर द Q1 ओवरऑल डेटा सेट निकालना है तो ओवरऑल डेटा सेट भी आपको निकाल के दे देगा QRT अंडरस्कोर सेल्स अब आपको क्या करना है जस्ट यूज द वैल्यू अंडरस्कोर काउंट ओवरऑल तो स्पेसिफिक आपको क्या करना है स्पेसिफिक कॉलम को यूज नहीं करना है कि आप स्पेसिफिक कॉलम का यूज करें वैल्यू अंडरस्कोर काउंट तो ओवरऑल डेटा सेट का बात नाउ कैन सी दिस ओवरऑल डेटा सेट की वैल्यूज भी मुझे दे डन सर उसमें एंट्री वन का वैल्यू क्यों नहीं आया? आया तो इसमें ये देखो वैल्यू ये वैल्यू है ना एंट्री 1 की 120 सर ऊपर में क्वार्टर वन का वैल्यू काउंट्स में एंट्री वन का वैल्यू क्यों नहीं आया? अरे ये दिखा तो रहा हूँ सर देखो अच्छा उस साइड है। ये यस सर यस देखो सर। एंट्री 1 की वैल्यू यहाँ आ रही है एंट्री 2 की वैल्यू ये है एंट्री 3 की वैल्यू ये ठीक ऊपर आ गया ना इसलिए ध्यान नहीं दिया। है कोई बात नहीं तो बेसिकली चलो अपडेट करते हैं कैसे हम अपडेट करेंगे तो सेट वैल्यूज का यूज करके हम क्या करेंगे अपडेट करेंगे अब मेरे पास हो गया वेरिएबल वेरिएबल के बाद हमारे पास फंक्शन हो गया सेट अंडरस्कोर वैल्यू फिर कहाँ पर वैल्यू अपडेट करनी है आपको वो इंडेक्स वैल्यू देनी पड़ेगी किस कॉलम में अपडेट करनी है वो कॉलम वैल्यू क्या वैल्यू अपडेट करनी है वो वैल्यू ठीक है रो कॉलम एंड वैल्यू लेट्स डू द
So this is my entry, like qrt underscore cells dot set underscore value, and we can mention here entry 2, entry 2 के Q2 में या Q1 में डाल दीजिए। Q1 में मुझे मेंशन करना है यहाँ पर Q1 में मेरे पास 200 है, आई मेंशन द 500, अपडेट विथ 500, मतलब फंक्शन चेंज अपडेटेड टाइम, फंक्शन का नेम रखिएगा अंडरस्कोर सेट अंडरस्कोर वैल्यू, देखिएगा सर थोड़ा सा अपडेट हो गया, ठीक है। नाउ यू कैन यूज द क्वालिटी अंडरस्कोर सेल। नाउ यू कैन सी दिस, जो मेरे पास Q1 एंट्री 2 में Q1 की वैल्यू थी वो 200 थी, एंड अपडेट होकर के मेरी कितने हो गई 500। सिंगल वैल्यू अगर अपडेट करनी, अच्छा हाँ एक चीज़ ये भी देख लें, मैं एरर के साथ भी दे रहा हूँ कि जो फंक्शन है फंक्शन में अंडरस्कोर सेट अंडरस्कोर वैल्यू और फंक्शन नेम है। Okay, so you can use the set underscore sorry underscore set underscore value to update a single value on existing data set. Let's move on. अब मुझे अपडेट पूरा का पूरा कॉलम करना है, पूरा का पूरा कॉलम अपडेट करना है, तब आप क्या अप्रोच लगाओ। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमारे पास प्रॉपरली सिंगल वैल्यू ही हमें अपडेट करनी है। तो आप क्या करोगे, एक नया कॉलम बनाओगे, यू कैन क्रिएट अ न्यू कॉलम एंड यू कैन यूज द अपडेट फंक्शन। That's how to create a new column and update a function. So let's see. So I'll use this approach for the practical analysis. So let's see. Create my data बना लेता हूँ यहाँ पर, और मेरे पास है the name and account number, alright, and the C1, C2 and C3, C4. But अपडेट आप तभी कर पाओगे अपडेट की वैल्यू को कि आपको देखना होगा कि यहाँ पर आपके पास जो रोज हैं वो आपके पास मैच करते हैं, ठीक है, रोज वैल्यूज मैच होने चाहिए, अदरवाइज अपडेट नहीं कर पाओ। So let's create this update entire columns. Let's create the dictionary first, name and account number. So I'll take a d1 is equal to, the first key is name, and here we go, the name is Jude, Madan, Rafael and Edwina. And like a b, I'll take a n1 for the name 1, comma n2 for the name 2, n3 for the name 3 and n4 for the name 3. And same account number like 101 comma 102 comma 103 comma 104. So this is my first dictionary. Now the second one is for the account number. जो अकाउंट नंबर में 101 पे, अब उनको चेंज कर देता हूँ मैं अनदर अकाउंट, तो मैं दूसरी डिक्शनरी क्रिएट कर लेता हूँ। तो आई यूज द अकाउंट। अब ये बेसिकली अकाउंट नंबर, ये बेसिकली अगर मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ तो ये मेरा क्या क्रिएट होगा, ये अगर सिंगल कॉलम के लिए सीरीज क्रिएट होगी, ठीक है तो कॉलम कॉलम ही प्रॉपर है लेकिन एक सीरीज क्रिएट होगी। सो आई यूज ट्रिपल वन कॉमा ट्रिपल टू कॉमा ट्रिपल थ्री कॉमा ट्रिपल फोर, मैं ये क्रिएट, ओके, ये वाला मैं क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। डी टू इज इक्वल टू क्या नाम है, सी वन सी टू सी थ्री सी फोर।
C1, comma C2, comma C3, comma C4. C1 के लिए लिया ट्रिपल वन, very good morning. And for the C2 is triple two, and for the C3 is triple three, and for the C4 is triple four. You can take. अच्छा मैम बताइए मैम एक्चुअली ना मेरे अभी काम कर रही हूँ तो 2 मिनट हाँ आप लोग बता दी मेरे मैंने पॉट में अच्छा अच्छा ठीक है ओके ओके okay then now we'll convert first in data frame, second convert into series. मैं आपको पीपीटी में भी करा सकता हूँ बट क्या है ना कि मैं चाहता हूँ कि आप ही क्रिएट करो ऑलराइट दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड दिस सीधी इससे क्या होगा कि आपको भी समझ में आएगा कि हम एक्चुअली में कैसे क्रिएट कर रहे हैं हैबिट आ जाएगी डिक्शनरी क्रिएट करने की अगर वैल्यूज ऐड कराएंगे तो तरह से सीखो आप वर्क करना ठीक है तो बेसिकली आई पास द डी पर दूसरा मुझे इंडेक्स भी पास कराने तो क्या करूँगा इंडेक्स पैरामीटर इंडेक्स की वैल्यू सेम ले लेता हूँ C1 कॉमा C2 कॉमा C3 कॉमा C4 कोई मुझे बस ये बता दो कि जब मैं यहाँ पर आप देख रहे होगे मैं पहले थोड़ा सा अप्रोच दूसरी लगा रहा था मैं क्रिएट कर रहा था D2 एक डिक्शनरी और वहाँ पर अकाउंट नंबर ले रहा था और उसके बाद ट्रिपल वन ट्रिपल टू ट्रिपल थ्री अकाउंट नंबर की वैल्यू था उस पर क्या डिफरेंस है एनीवन सर वो स्ट्रिंग की एरर दे रहा था ना उसमें, नेम नहीं एरर, नहीं नहीं अरे क्योंकि ये उसमें वेरिएबल कंसीडर कर रहा था C1 नहीं C2। नहीं नहीं एक्चुअली मैं उस C1 की बात करूँ यहाँ तो न्यूमरल इस वजह से आ गई क्योंकि क्वाट नहीं लगा था बेसिकली अगर मैं अकाउंट नंबर में डायरेक्ट पूरा बनाता है अकाउंट नंबर तो उससे क्या होता है कि वो पूरी एक पूरी की पूरी लिस्ट सिर्फ एक ही की को असाइन होती है ठीक है और मुझे की C1 C2 C3 C4 में असाइन करना है दैट्स व्हाई कि मुझे एक सीरीज क्रिएट करनी पड़ेगी तो ये हमारे पास सीरीज बन गई डेटा फ्रेम बन गया लेट्स फिल दिस सो द df1 इज हियर आई कैन सी दिस और दूसरा df2 हमें बनाना पड़ेगा ताकि मैं उसको प्रॉपरली मेरे पास देखो कॉलम हमें असाइन करना है तो df1 बनाना df2 बनाना पड़ेगा क्योंकि सीरीज में तो आएगा नहीं लेट्स फिल द सीरीज फर्स्ट कि मैं दिखा देता हूँ कि क्या हमें इसका अप्रोच करना चाहिए यहाँ पर तो नेम नहीं है यहाँ पर तो सिर्फ वैल्यूज आ रही है ये वैल्यूज बात कर रहा था अगर मैं सीधे ले रहा था अकाउंट नंबर सी ले रहा था और उसमें ये वैल्यूज एक साथ डाल रहा था तो ये एक ही उस पर लिस्ट में प्रॉपरली होता है ठीक है फॉर द सिंगल इंडेक्स एक सिंगल इंडेक्स के लिए तो इसको भी एक बार जल्दी से कन्वर्ट कर लेते हैं df2 इज इक्वल डी डॉट डेटा फ्रेम एंड आई पास द s1 हियर और इंडेक्स दे देता हूँ इसको एक ही इंडेक्स रहेगी इंडेक्स दे देते हैं इसको अकाउंट df2 के लिए अकाउंट डन चलो आई प्रिंट df अभी हो गया df1 और दूसरा मैं प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे प्रिंट df2 ये दो डेटा फ्रेम आपके पास मैम और सॉरी एक सीधी सी मिस्टेक हो गई भाई क्या होगी मुझे लेना चाहिए था कॉलम्स पैरामीटर और मैंने ले लिया है इंडेक्स ठीक है छोटी सी सीधी सी मिस्टेक हो गई df2 इज इक्वल टू cd डॉट डेटा फ्रेम
I'll pass the S1, मुझे क्या यूज करना है, और मैंने इंडेक्स ले अकाउंट अंडरस्कोर now I'll print df1 submitter using another print on a same single line, you can use it. ये हमारे पास वैल्यू बनी, ठीक है। दूसरा छोटे छोटे से मिस्टेक हुई, होपफुली उन मिस्टेक, अगर जो मेरे से अभी मिस्टेक हो गई सीधी, तो वो आपसे भी हो सकती हैं और इसको एनालाइज कर सकते हो कि क्या चेंजेस हमने किए और क्यों किए। तो डेटा बन गया, बस अब आपको अपडेट करना है। अपडेट क्या करना है कि मेरे पास जो DF1, यहाँ पर नेम और अकाउंट नंबर हमारे पास नहीं, बट मैं चाहता हूँ DF1 में मेरे पास जो डेटा आ जाए वो ये वाले अकाउंट नंबर नहीं, ये वाले अकाउंट नंबर मुझे अपडेट करना है। तो कैसे अपडेट करोगे, पहले तो आप पहला वेरिएबल का नेम जो आपका DF1 है, डॉट अपडेट, जिस पर अपडेट करना है उस वेरिएबल का, ठीक है। तो पहले मेरा हो गया DF1 डॉट अपडेट एंड यू कैन यूज पास द DF1 में DF2 का अपडेट कर। नाउ यू कैन प्रिंट द DF1, यू कैन सी हमारे पास जो नया हमने कॉलम बनाया वो अपडेट हो गया मेरे DF2। अभी आप प्रिंट DF2 कराओगे तो वो आपके पास वही रहेगा, आई कैन सी, ठीक है। तो जो DF1 था हमारा, उसमें क्या है, हमने एक नया कॉलम ऐड कर, क्लियर। तो दिस इज अपडेट अ एंटायर। तो ये अप्रोच होगी हमारी part 3। मूव ऑन द नेक्स्ट, हाउ टू फिल्टर है डेटा, कि हम डेटा सेट को फिल्टर कैसे करें, ठीक है। फिल्टर आएगा, आफ्टर दैट फिर हमें कॉन्कैटिनेशन और मर्जिंग समझनी है, एंड इसके बाद फिर हमारा ज्वाइंस। तो ये ज्वाइंस हो जाएगा, उसके बाद ज्वाइंस के बाद आपका प्रॉपर्टी खत्म है, ठीक है। पैंडा फिर सर कोड तो रन हो गया लेकिन समझ में नहीं आया सर क्या क्या हुआ, एक बार अफकोर्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समराइज कर रहे हैं सर। बिल्कुल दोबारा से बता दें। देखो, बिल्कुल स्टार्ट से बताओ, ठीक है। स्टार्ट से ले लेते हैं हम, फिर हियर वी गो। ना, पहले हमने क्या करा, हमने एक डिक्शनरी बनाई फॉर द, ठीक है। और दूसरी मैंने डिक्शनरी ली यहाँ पर, ठीक है। दूसरी मैंने वही कर दी, पॉट नहीं लगाएगी, लेट्स कंसिडर पॉट। ये वाली तो छोटी सी एरर है, आपको पता ही होगा कि अगर पॉट नहीं लगाएंगे तो चीज़ को चीज़ के फॉर्म में परफॉर्म नहीं करेगा अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो सिंपली हमने दो डिक्शनरी। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मुझे यहाँ पर एक न्यू वैल्यू जो असाइन करनी है, एक नया कॉलम बनाना है। तो क्या मैं डायरेक्टली यहाँ पर एक अकाउंट नंबर ले करके और उसकी न्यू वैल्यू जो फिक्स करनी है, तो ये डायरेक्ट नहीं दे सकता, नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट अकाउंट नंबर ले लूंगा और यहाँ पर यही न्यू वैल्यू यहाँ 11 111 222 333 ये वैल्यूज दूंगा, तो वो क्या होगा कि वो एक सीरीज में भी जो असाइन होगी, वो एक सिंगल इंडेक्स के लिए पूरी की पूरी एंटायर लिस्ट असाइन हो जाएगी, ना कि ये मेरे पास 4 इंडेक्सेस बनेंगे, वो सिर्फ सिंगल इंडेक्स। तो ये अप्रोच मैंने नहीं यूज किया, ठीक है। नाउ कन्वर्ट, तो मैं इसको कन्वर्ट करूँ डेटा फ्रेम में, तो पहले ले लिया मैंने DF1 इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम एंड आई पास द D1 हियर, ठीक है। मैंने D1 सिंपली पास कर लिया, एक डेटा फ्रेम रेडी हो गया। DF2 ले लेते हैं और पहले सीरीज में इसको कन्वर्ट करके, डायरेक्टली हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये भी आपको मालूम है। तो पहले मैं इसको सीरीज में कन्वर्ट करता हूँ, तो pd डॉट, अच्छा ये हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते थे, लेकिन आपको कन्वर्जन भी क्लियर होनी चाहिए, एंड आई पास द D2 हियर। अब इसको हम डेटा फ्रेम 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो pd डॉट डेटा फ्रेम, और ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे, साथ ही साथ मुझे क्या है, कॉलम का नेम भी, क्योंकि ये C1 C2 C3 C4 जो है वो सीरीज में कन्वर्ट होगी, ठीक है।
अब मुझे कॉलम नेम भी चाहिए, तो हाउ टू क्रिएट द कॉलम नेम, तो मुझे कॉलम नेम असाइन करनी है। तो मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा कॉलम्स पैरामीटर एंड आई यूज़ द अकाउंट अंडरस्कोर नंबर। अभी आप देख लो प्रिंट करा के, पहला हो गया DF1, ये हो गया DF1 हमारे पास। ठीक है, इसकी इंडेक्सेस भी चेंज कर लेते हैं, DF1 की मैंने चेंज नहीं करी, यहीं पर आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। जो DF1 नाइन कंसिडर, और इसकी मैं वैल्यूज इसमें क्या पास करूँगा, इंडेक्स क्या देता हूँ, C1 कॉमा C2 कॉमा C3 कॉमा C4। डायरेक्ट भी ले लेगा और यहाँ चेंज भी कर देगा, इसको कोई इंडेक्सेस आ जाएंगे। अब विद इंडेक्सेस आपके पास कंप्लीट है। ये हो गया डेटा फ्रेम फर्स्ट। ठीक है, वेर इज नेम कॉलम नेम एंड द सेकेंड वन इज द अकाउंट कॉलम नेम, और अलग अलग हमारे पास वैल्यू नेम वन नेम टू नेम थ्री, एंड हियर इज द वैल्यू इज 101 102 103 एंड 104। So with the indexes C1 C2 C3 C4, let's DF2, let's print the DF2. I'll print DF2. Now I can see this here is the index is C1 C2 C3 same, and the account number is different, triple one triple two triple three triple. So we can update these account number, these column into this value, these values. ठीक है, तो हमें इसको अपडेट करना, हाउ टू अपडेट दिस, df1 dot, you can use the update function, hello, so update and pass the df. If I'll print the df1 right now, I change the change, जो हमारे पास वैल्यूज थे एंटायर वैल्यू, मतलब अभी हमने एक वैल्यू चेंज करी थी किससे, अंडरस्कोर सेट अंडरस्कोर वैल्यू, सिंगल वैल्यू। अगर आपको पूरी वैल्यू पूरे कॉलम के सारे कॉलम की चेंज करनी है तो इसे यूज द अपडेट फंक्शन। अभी दीपक क्लियर? यस सर। तो गाइस दिस इज ओवरऑल पार्ट 3। अब पार्ट 4 पे हम लोग कल बात करेंगे, जहाँ पर हमारी फिल्टरिंग होगी, एंड फिल्टरिंग के बाद हम लोग कॉन्कैटिनेशन कंबाइनिंग सीखेंगे, एंड मर्जिंग। ठीक है, मर्ज जो हमारा फोर्थ में होगा, तो बेसिकली फिफ्थ में, तो मर्ज और जर। तो फिर इसके बाद फिर हमारे पास बचेगा यूज केस। तो अब दोनों के यूज केसेस में आपको नमपाई के और इसके यूज केसेस, एक प्रॉपरली एक अलग से क्लास हमारी यूज केस होगी, नमपाई की यूज केस की क्लास होगी, एंड पेंडास की होगी। एंड आफ्टर दिस फिर हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, पेंडास और नमपाई को मिक्स कर। ठीक है, इससे आपकी दो लाइब्रेरी कंप्लीट होगी। आफ्टर दैट फिर मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉन। तो मैटप्लॉटलिब तो मैं आपको एक ही दिन में सिनेरियो करा दूंगा। ठीक है, बेसिक बेसिक सिनेरियो करा दूंगा, एंड सी बॉल फिर उन्हीं को प्रोजेक्ट केसेस पे कराऊंगा। तो मैटपोल और सी बॉल का यूज अलग अलग प्रोजेक्ट, तो पहले मैं आपको प्लॉटिंग बताऊंगा, कौन कौन से प्लॉट किस लिए यूज होते हैं, डिफरेंसेस बताऊंगा, एंड आफ्टर दैट फिर हम लोग मैटप्लॉट और सी बॉल की यूज करेंगे। इसके बाद फिर एक कंबाइंड प्रोजेक्ट कराऊंगा, जो पैंडास डेटा एनालिसिस के लिए होगा, सॉरी पाइथन डेटा एनालिसिस का होगा। ठीक, तो बस ये नेक्स्ट वीकेंड जो हमारा होगा प्रॉपरली हमारा ये वाला केस फिनिश हो जाएगा, मतलब पाइथन डेटा एनालिसिस का केस फिनिश हो जाएगा। हम्म, सर रेज्यूमे लाइक एक प्रोजेक्ट बनवा दूंगा। रिज्यूमे लो, हाँ हाँ ऑफ कोर्स, जो भी मैं हाँ। आपको कराऊंगा वो आप अपने सीवी या रिज्यूमे में ही मेंशन करेंगे, वही प्रोजेक्ट कराऊंगा। ठीक है, यस सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज की स्ट्रेंथ मुझे काउंट कर लेने देना, जाना नहीं है।